Hello and welcome to the Sigma classes. Welcome back. So, in continuation of the chapter, pair of linear equation in two variables. So, I'm going to record this video today. Last time we discussed what actually an equation is. Then we discussed what actually a linear equation in two variable is. And then we discussed a pair of linear equation in two variables. And I told you about the shape of the linear equations. That is always a straight line. So I told you about the three cases. Whenever we have a pair of linear equations, we can have three cases. Like the first case, if you remember, that was the intersecting case. If you remember the first case, see the two lines. See, we have two equations. So it means we can have a maximum of two graphs or two straight lines. So first, these two lines can be intersecting. Second case, these two lines can coincide with each other. यानी एक दूसरे के ऊपर लाई कर सकती है तो इस तरीके से लाल और ये नीली दोनों एक दूसरे पर लाई कर रही है. Both of them are coincident lines. Okay. And finally, we discussed that the lines can never meet each other. So the third case was parallel. Okay. So these three cases we are going to understand them further. Let's get started with intersecting lines. Let's get started with intersecting lines. So the first topic that we are going to understand is intersecting lines. So the two lines are said to be intersecting when they have only one common point. Okay, जब उनमें कोई एक common point. And if you remember, last time we discussed about the solution of a linear equation in two variables. Solutions is nothing but the value of the variables at which the equation get satisfied. मतलब variables की वो value जिन values पर जो हमारी equation है वो satisfy हो जाए. Okay, I mean satisfy होने का मतलब है left hand side और right hand side equal हो जाए. ठीक है, x और y की वो values और actually variables की वो values मुझे ये बोलना चाहिए. खैर वापस आते हैं. So now they will have only one common point or one common solution. We will discuss about it. We will discuss about it what actually a common solution is all about. So I'm giving you an example. I'm going to write down two lines here. I'm going to write down two lines here. X plus y equals 5. And the second line I'm going to write down 2x plus y equals 4. Now what I will do, see students, always remember that in order to draw a unique line, we required a minimum of 2 points. अगर हमें कोई भी एक यूनिक लाइन ड्रॉ करनी है तो एटलीस्ट हमें 2 पॉइंट्स तो चाहिए ही चाहिए. तो पहली हमारी लाइन है x plus y equals to 5. तो यहाँ पर इस लाइन को अगर हमें ग्राफ बनाना है तो एक्चुअल में हमें 2 पॉइंट्स चाहिए यानी x plus y equals to 5 के दो सॉल्यूशन चाहिए. तो कैसे निकालेंगे सॉल्यूशन, आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा था. We have already learned about that in 9th standard. First you will put x as 0, so the equation will become x 0 plus y equals 5. So we got the first solution as 0. Then you will put y as 0, then the equation will become x plus 0 equals 5. So you got x as 5. So the second solution you got 5 comma 0. So now what to do? I'm going to plot this line on the number one. ठीक है, मैं पहले इसको ही प्लॉट कर लेता हूँ, उसके बाद दूसरी लाइन के सॉल्यूशन में निकाल. This is my x-axis. This is my y-axis. The point where these two lines intersect, that is origin. Positive side of the y-axis 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5. All right. Now the first solution we have is 0, 5 and 5, 0. Let me try to plot these 2 points on the graph or on the Cartesian plane, I should say. Sorry, on the Cartesian plane I'll be plotting it, and I'll be plotting it with blue color so that you can easily relate कि ये सब blue color से है तो इसी equation के बारे में. 0, 5 will lie on the x-axis. Sorry, y-axis, and 5, 0 will lie over here on the x-axis. Now what you need to do? You need to join these two. You need to join these two. So this line, this straight line, though it's not a straight line, actually में मेरे पास पूरे टूल नहीं है, स्केल वगैरह नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं बना पाऊंगा, बट हाँ मैं काफी कर. ठीक है, तो ये जो लाइन आई है ये स्ट्रेट लाइन, ये x plus y equals to 5 थी. और ये दो एंड में आपने देखा होगा मैंने एरोज लगाए हैं. एरो का मतलब यही है कि ये बढ़ती जाएगी, ये कभी एंड नहीं होती. लाइन कभी एंड नहीं होती. लाइन डज नॉट हैव एंडिंग. ठीक है, पहली हो गई. अब नाउ सेकंड इक्वेशन वाज व्हाट?
2x plus y equals to 4. 2x plus y equals to 4. This was my equation. Now what I'm going to do, again I have to find some solutions. Now इसके लिए मैं green color ले लेता हूँ. तो पहले मैं x को 0 रखता हूँ. तो देखते हैं क्या होता है. 2 into 0 plus y equals 4. तो यहाँ से y आ गया मेरे पास 4. और the first solution we got 0. फिर आप y को 0 रख दो. 2x plus 0 equals 4. 2x आ गया 4 और x आ गया हमारा 4/2. That is the second solution we got 2, c. So now what I'm going to do, I'm going to plot these 2 points on the Cartesian planes. 0, 4 will lie here, and 2, 0 will lie over here. So what will happen if you join these 2 points? If you join these 2 points, these 2 points are going to intersect each other. How they are going to intersect each other? Let me extend the first line, then you will get to see. मैं पहले सेकंड लाइन को एक्सटेंड कर लेता हूँ. मुझे वैल्यूज कुछ और नहीं ताकि आपको मैं इजीली समझा पाऊँ. बट एक्चुअली चलो कोई बात नहीं है. तो यही हो गया. मैंने रैंडम ली थी. हाँ, तो आप जब जब इनको दोनों लाइन को बढ़ाएंगे ना तो एक कॉमन पॉइंट आएगा. एक कॉमन पॉइंट आएगा. तो इट मींस these two lines are intersecting lines. These two lines are intersecting lines. Now you all know students कि every point on the line satisfies the equation. जैसे कि x plus y equals to 5 थी. तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे 3,2. देख लो ऐड करके देख लो. 3 plus 2 equals to 5. यहाँ पर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 4,1. ऐड करके देख लो. x की जगह 4, y की जगह 1, तो 4 plus 1 यानी 5. यहाँ पर भी ऐसे ऐड करके देख लो. 2,3 ऐसे वही ऐड करके 5 ही आएगा. तो आप देख रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन पर इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स लाई करते हैं. ठीक है, इनफाइनाइट पॉइंट लाई करते हैं. तो इसीलिए एक लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के इनफाइनाइट सॉल्यूशन, एक लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं. एवरी पॉइंट ऑन द ग्राफ विल सैटिस्फाई द इक्वेशन. बट अगर मैं दोनों की बात करूं, यहाँ पर एक कॉमन पॉइंट है. ये केवल और केवल यही एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों लाइन पर आ रहा है. This red dot is nothing but it is the only point which lies on both the lines. So it means it's a common solution. It will satisfy the equation of it will satisfy the green line and as well as the blue line. So it means the coordinates of this point will satisfy both the equations. So it means how many common solutions intersecting lines will have? Only one unique solution or only one common solution. So from here we got only one solution. Okay, so in case of intersecting lines, there will be only one common solution. Now, look at here. Look at the if we compare with the standard form of pair of linear equation in two variables, you all know a1x plus b1y plus c1 equals to 0, and second a2x plus b2y plus c2 equals to 0. So you'll get to know कि देखो आप इसको कंपेयर करेंगे तो a1 क्या है? a1 is a coefficient of x और यहाँ पर x का कोएफिशिएंट. तो a1 कितना है? a2 कितना है? इसी तरीके से b1 कितना है हमारा? b1 हमारा कितना है? b1 हमारा आया फिर से 1, y का कोएफिशिएंट, और यहाँ पर भी b2 कितना है? 1. तो आपको c1 c2 अगर आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हैं. c1 विल बी -5 और c2 इक्वल टू -5. तो आप लोगों ने एक चीज नोटिस की कि जो ये रेशो है a1/a2, a1/a2 1/2 और b1/b2 ये है 1/1. तो आपने एक चीज नोटिस की, ये दोनों इक्वल नहीं है भाई. a1/a2 तो है हाफ और b1/b2 है 1. तो ये दोनों इक्वल ही नहीं है. ये दोनों भी नहीं है. सो दिस इज द अलजेब्रिक कंडीशन फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन और रेशियो बिटवीन देयर कोएफिशिएंट्स. ओके, अलजेब्रिक कंडीशन. बात समझ में आई आप लोगों को कि अगर हमें चेक करना है कि कोई इक्वेशंस इंटरसेक्टिंग लाइंस है क्या, क्या कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्टिंग लाइंस है क्या, आप ग्राफ वगैरह प्लॉट करने की जरूरत नहीं है. सीधा सीधा काम आपका इससे होता है. आप बस कंपेयर करके देख लो कोएफिशिएंट्स को a1/a2 और b1/b2 निकाल के देख लो. अगर a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 आता है, अगर ये आता है तो हाँ ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी ही होगी. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अगर डाउट होता है तो कमेंट में लिख दीजिएगा. मैं या तो दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा या फिर अगले सेशन में इसको फिर से, ठीक है, या पर्सनली आपको बता. दिस इज ठीक है. तो ये हो गया इंटरसेक्टिंग लाइंस. नाउ द सेकंड टाइप ऑफ लाइन और सेकंड टाइप ऑफ केस वी हैव, केस 2 is coincident lines. Coincident lines.
मैं यहाँ पर दो पेयर ऑफ आई मीन वन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स ले रहा हूँ। पहला तो मैं ये ले लेता हूँ x + y = 4, और दूसरा मैं ले लेता हूँ 2x + 2y = 8। ठीक है, तो नाउ आई एम गोइंग टू प्लॉट द फर्स्ट इक्वेशन। x + y = 4, सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो x को 0 रखो, y आ गया 4, y को 0 रखो, x आ गया। सिंपल। नाउ दूसरी इक्वेशन पे मैं निकाल लेता हूँ, दूसरी इक्वेशन को सॉल्यूशंस निकाल लेता हूँ दूसरी इक्वेशन के। 2x + 2y = 8, x को 0 रख दो, तो 2x वाली टर्म तो 0 हो जाएगी, 2y = 8, y यहाँ से आ गया। ठीक है, y को 0 रख दो, तो 2x + 2y हो जाएगा, फिर से 0, 2 × y 2 × 0 ना, तो 0 फिर से हो जाएगा, तो 2x = 8 आ जाएगा। यहाँ से x आ गया 4। तो हमारे पास दो सॉल्यूशंस फिर से आ गए, 0,4 और 4,0। आप कह सकते हैं सर दोनों केस में सेम सॉल्यूशंस है। यस, दोनों केस में सेम सॉल्यूशन है, तो इनकी लाइन तो सेम ही होनी चाहिए। तो हमने यही तो बताया था कोइंसिडेंट के केस, है ना, हमने यही तो बताया था कोइंसिडेंट के केस में कि बोथ द लाइंस लाइज ओवर वन ओवर ईच अदर। जैसे मेरी उंगली है ऐसे लाई कर रही है ना, इसी तरीके से दोनों की दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर लाई, एक कोइंसिडेंट। तो आई एम गोइंग टू प्लॉट द ग्राफ नाउ। So this is the point origin, -1, -2, -3, 1, 2, 3, 4, 5 and so on. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So first of all we have 4,0 and 0,4. Let's try to plot them on the graph. तो पहले में 4,0 ये लाइन करेगा यहाँ पर, और 0,4 ये लाइन करेगा क्या, दोनों पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करके लिखता हूँ। ठीक है, नाउ वी हैव 0,4 और 4,0। तो फिर से ये दोनों पॉइंट यहीं पर लाइन करना है, दोनों को फिर से चॉइस कर लेते हैं भाई, हमारे पास कोई चारा ही नहीं। ठीक है, तो डिड यू सी समथिंग है, बोथ द लाइंस आर लाइंग वन ओवर ईच अदर। तो इन दोनों में कितने कॉमन पॉइंट्स है निकालना सर, कितने कॉमन पॉइंट्स नजर आ रहे हैं भाई। पहला कॉमन पॉइंट है, कौन सा कलर लूं, चलो ठीक है, ध्यान से देखना, ये एक कॉमन पॉइंट है, एक और कॉमन पॉइंट, एक और कॉमन पॉइंट, एक और कॉमन पॉइंट, एक और कॉमन पॉइंट, इनके बीच में ऐसे तो पता नहीं कितने। मैं जानता हूँ कि एक स्ट्रेट लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट लाई करते हैं, तो इसी तरीके से हाउ मेनी कॉमन सॉल्यूशंस विल बी देयर, कॉमन पॉइंट कितने हैं, इनफाइनाइट, so therefore there will be infinitely many solutions। बात समझ में आई आप सभी लोगों को, infinitely many solutions will be there in this case। अब आप कंपेयर कर ले a1 a2 b1 b2 की वैल्यू निकालनी और देखने क्या आता है। देख लो जरा, a1 है 1 और a2 है मेरा 2, तो a1 अपॉन a2 कितना आ गया, b1 कितना है भाई, b1 अपॉन b2 सीधा सीधा निकाल लेते हैं, b1 है 1 और b2 है 1 अपॉन 2, फिर से आ गया। अब c1 अपॉन c2 भी निकाल लेते हैं, देखो -4 अपॉन माइनस, ये फिर से कितना आ जाएगा 1 अपॉन 2। सो डू यू सी समथिंग हियर कि अलजेब्रिक कंडीशंस क्या आई, अलजेब्रिक कंडीशन आई कि a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। अगर हमें ये चेक करना है कि क्या कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स कोइंसिडेंट है, हम सीधा सीधा ये चेक, हम रेशो कंपेयर कर लेंगे तीनों कोएफिशिएंट्स। अगर ये सेम आती है तीनों के केस में, तीनों के केस में रेशो सेम आती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हाँ कोइंसिडेंट लाइन होगी ही होगी। आई होप इट इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। नाउ वी विल लुक एट द लास्ट केस दैट इज पैरेलल लाइंस, और इसके बाद हम करेंगे आगे। आगे मैं नहीं पढ़ाऊंगा आज, क्योंकि आज ही काफी ज्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि शॉर्ट रहे वीडियोस, ताकि आप लोग भी बोर ना हो। नेक्स्ट वन वी हैव द केस 3, बाकी हम कल पढ़ेंगे इनके बारे में डिटेल्स। आज तो आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि ये एक्चुअल में होते हैं। पैरेलल लाइंस तुम सभी जानते हैं भाई, ऐसी लाइन जो कभी आपस में इंटरसेक्ट करेंगे ना। तो मैं दो इक्वेशन यहाँ पर ले ले रहा हूँ, x + y = 3 और 2x + 2y = 5। नहीं 5 नहीं, 6 रखेंगे, ठीक है, नहीं 6 नहीं भाई, 6 कैसे करनी है, 8 रख देता हूँ, 8 रख देता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखो, पहली इक्वेशन है मेरे पास x + y = 3, x को 0 रखो, y आ गया, y को 0 रखो, x आ गया, सॉल्यूशन आ गए 0, 3 और 3, 3। सेकंड इक्वेशन है मेरे पास
2x plus 2y equals 8. x को 0 रखो तो 2x वाली टर्म हो जाएगी 2y 8, y आ जाएगा, y को 0 रख दो 2x plus 2 into y वाली टर्म हो जाएगी 0, तो 2x किसके इक्वल आ जाएगा, 8 के इक्वल आ जाएगा, तो यहाँ से x आ गया। मेरे पास दो सॉल्यूशन है 0,4 और 4,6। पहले x लिखते हैं उसके बाद में y, ठीक। इसमें कोऑर्डिनेट्स में पहले x आता है फिर बाद में y। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये तो पहले ही मालूम होगा, तो मैं पढ़ाया नहीं वीडियो। खैर, अब हम इन दोनों लाइंस के ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, जगह नहीं है, चलो थोड़ा छोटा सा कर लूंगा, ध्यान से देखिएगा सभी, बहुत इजी है। दिस इज माय x axis and this is the y axis, this is the point where these two lines intersect, this is origin. Now let me plot, let me mark the points 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 1 3 4 5, okay, -1 -2 and so। अब ध्यान से देखिए, पहला जो पॉइंट है 0,3, क्लोज कर लेता हूं भाई, 0,3 ना होने से 0,3 विल 9 है और 3,0 विल 9, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लो, ठीक है। So this is the red line is of the equation x plus y. Now next points we have from the green color 0,4 0,4 will lie here, 1,0, दोनों पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। आप क्लियरली ड्रॉ, आप इनको ढंग से जाकर के ड्रॉ करना। आप क्लियरली देख पाओगे स्टूडेंट्स कि जो दोनों लाइन है ना हमेशा पैरेलल होंगी, हमेशा पैरेलल हो, कभी आपस में टच ही नहीं करो। और अगर आपस में कभी टच नहीं कर रही है तो कितने कॉमन पॉइंट होने चाहिए, कभी आपस में टच ही नहीं करे तो कितने कॉमन पॉइंट होने चाहिए, एक भी नहीं। therefore there should be no solution because there is no common point, ठीक है, as simple as that। अब अगर हम चाहें कि ग्राफिक प्लॉट ना करना पड़े तो फिर क्या करें, चलिए भाई रेशियो को कंपेयर करते हैं, a1 अपॉन a2 निकाल लेते हैं। देखो भाई कितना आएगा, a1 तो है 1, a2 है 1 अपॉन b1 अपॉन b2 निकाल लेते हैं भाई, b1 है 1 b2 है 2, c1 अपॉन c2 निकाल लेते हैं, तो -3 अपॉन -8, 3 अपॉन 8 आ गया। आपने यहाँ से एक कंडीशन चेक की कि a1 अपॉन a2 तो b1 अपॉन b2 के इक्वल होना चाहिए, बट ये आपस में इक्वल नहीं होना चाहिए c1 अपॉन c2 के। सो दिस इज द अलजेब्रिक कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस। एक और बात, इन सिस्टम को हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, यानी एक ऐसे सिस्टम जहां पर हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं आता, इनको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ओके, यहाँ पर देखो सॉल्यूशंस जहां जहां पर आ रहे हैं हमारे पास उनको बोलते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम, जैसे इंटरसेक्टिंग है कंसिस्टेंट सिस्टम। फाइनली जैसे कोइंसिडेंट के केस में देखो सॉल्यूशन आ तो रहे हैं, भले इनफाइनाइट हो लेकिन सॉल्यूशन तो आ रहे हैं ना, तो फिर से ये क्या होगा, consistent system। I hope this is clear to all of you, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ द नेक्स्ट वन, मैं एक टेबल बना देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो, एक अच्छे से समझ पाए आप। इंटरसेक्टिंग लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस और पैरेलल। सबसे पहले इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं कुछ ऐसी, ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन होती है एक दूसरे के ऊपर के लाइन, ठीक है। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, तो कभी इसमें इंटरसेक्ट करती नहीं है, ठीक है। नाउ हाउ मेनी सॉल्यूशंस दे हैव, कॉमन सॉल्यूशंस, इंटरसेक्टिंग ही होगा ओनली वन सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट के केस में इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, और फाइनली देयर विल बी नो सॉल्यूशन इन केस ऑफ पैरेलल। उसके बाद ये होगा कंसिस्टेंट सिस्टम, ये फिर से कंसिस्टेंट सिस्टम बट डिपेंडेंट, और फाइनली ये होगा इनकंसिस्टेंट। और फाइनली द अलजेब्रिक कंडीशंस आर a1 upon a2 does not equals to b1 upon b2। अरे मैंने सब्ट्रैक्ट ग्रीन कलर, चलो कोई बात नहीं। कोइंसिडेंट होगा a1 upon a2 equals b1 upon b2 equals c1 upon c। और पैरेलल लाइन के केस में होगा क्या, a1 upon a2 equals b1 upon b2
but doesn't equals to C1 upon C1. Okay, students. So that's it. I hope whatever we have discussed in this session is clear to all of you. So that's it for today. If you like my content, you just please do subscribe to our channel and hit the bell icon so that you never miss any update from us. So thank you for joining. If you are watching this video, so I'm very grateful to you. Thank you for choosing Sigma classes. I do have only one motive that we should not mug all these things. Whatever we have mugged in our schools, in our tuitions, whatever the students do, they just mug all the things. Mug मतलब रट्टा मारना, ठीक है? उनको रट्टा ना मारना, ठीक है? समझ लो, आसान होती है चीजें। मैथ सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जितना आप इसको पढ़ के करेंगे, जितना टाइम आप मैथ को देंगे या जितनी इज्जत आप मैथ को देंगे, मैथ उतनी इज्जत आप इतना परफेक्ट आपका मैथ में बना देगा, ठीक है? लेकिन आपको बस थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है। So that's all. I'm going to end now. If you have any query, you can ask me here. You all know my email, maths7810@gmail.com. And please do give your valuable feedback in comment section. I'll be very happy to listen your feedback or to read your feedback. So thank you. I'm going to end now.